The undercover investigation has been carried out in good faith and in public interest. The organization and the journalist conducting the investigation are in no way associated or aligned with or against any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group named in the video or otherwise. Any reference, direct or indirect, made either to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group, or to any association, proximity, enmity, rivalry, hatred for, towards, between any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group is purely for the purpose of the investigation. It should not be insinuated from the contents of the investigation that the organization or the journalist conducting the investigation has done so either to target or at the behest of any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group. References in the video made by the persons other than the journalist conducting the investigation to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group are the sole prerogative and personal opinion of the respective persons. The organization and the journalist conducting the investigation do not intend to outrage, insult, wound, or hurt any religion or the religious sentiments, beliefs, or feelings of any persons or class or community while conducting the investigation. Viewers are advised that the videos have been transcribed to the best of our ability. Transcribing is a painstaking process and error-prone work. In case of any error, the video along with the audio should be referred to. Errors, if any, in transcribing are purely bona fide and unintentional. It should be remembered that subtitles are only an aid to the viewing process. Any misrepresentation or deviation of the editorial from the original documentary in Hindi as published on the official website of Cobra Post, or error due to translation into vernacular in news stickers, news bands, or any other visual element is the sole responsibility of the media channel carrying the story, whether in part or whole. हिंदी अखबार अमर उजाला के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश से 19 एडिशन निकलते हैं जो 179 जिलों को कवर करते हैं। डिजिटल प्रेजेंस जिसमें वेबसाइट, वेब टीवी और सोशल मीडिया शामिल है के साथ करोड़ों लोग अमर उजाला को देखते और पढ़ते हैं। क्या अमर उजाला में भी पेड न्यूज, खास एजेंडा या प्रोपेगेंडा चलाया जा सकता है? जवाब जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पुष्प शर्मा ने मुलाकात की अमर उजाला नोएडा के डीजीएम मीडिया सॉल्यूशन अनुज त्यागी से। पुष्प ने अनुज को अपने हिंदुत्व के एजेंडा, पॉलिटिकल राइवल्स को थ्रेश करने और मोहन भागवत के प्रमोशन की बात की। इस पर अमर उजाला के डीजीएम मीडिया सॉल्यूशन अनुज त्यागी ने कहा, हाँ, वो आपको वीडियो प्रमोशन हो जाएगा। वीडियो बना लीजिए, 3-4 मिनट का वीडियो लाइव हो जाएगा। वीडियो बना लीजिए, तो फर्स्ट जो मेरा एजेंडा है वो तो हिंदुत्व का रहेगा, ठीक है। और सेकंड जो एजेंडा है वो हमारा थ्रेशिंग ऑफ माय पॉलिटिकल राइवल्स। अब जिंगल्स में तो हमारे पास लिबर्टी होती है क्योंकि वहाँ आरजे उस एफसीटी के टाइम में जो कुछ बोला गया उसको एक्सप्लेन कर सकता है। पप्पू वर्ड को कर दिया तो कांग्रेस के ऊपर अटैक आ गया, लेकिन प्रिंट में हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इनोवेटिव होना चाहिए ताकि सीधा अटैक भी ना हो, आप भी सेफ रहें, हम भी सेफ रहें, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस। और जो तीसरा एजेंडा है, डिजिटली आप लोग स्ट्रांग हैं, तो उसमें जो भी कुछ पब्लिसिटी होती है वो पेड बेसिस पे होती है, पेड है, तो लेकिन वो इतना हैवी नहीं होगा जितना प्रिंट में जाएगा, ठीक है। तो अभी श्री मोहन भागवत जी भाई साहब का एक ही बार दशहरे के टाइम पे प्रसारण होता है, जो उनका भाषण होता है, तो हमने हमारी रिक्वेस्ट है कि 8 to 10 टाइम्स वो साल में होना चाहिए। तो अब जो हिंदुओं का नया साल आता है मार्च के टाइम पे, तो उस समय से उनका अब ज़्यादा शुरू हो जाएगा, तो हमें वो डिजिटल में भी चाहिए। प्रिंट में तो न्यूज़ के रूप में आ सकता है, लेकिन प्रिंट में आए ना आए, लेकिन हम डिजिटल उसको प्रमोशन चाहते हैं। हाँ, वो आपको वीडियो प्रमोशन हो जाएगा, वीडियो बना लीजिए, चलो उसका वीडियो लाइव हो जाएगा। राइट। सो मेरे हिंदुत्व की जो पैकेजिंग है, सबसे मेरी पहली और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट वो है। सेकंड थिंग, थ्रेशिंग टू माय पॉलिटिकल राइवल्स। कैसे पैकेज वे में आप कर सकते हैं, इन्हें डिफेंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को बचाते हुए लक्ष्मण रेखा के अंदर, वो है। और तीसरा मोहन भागवत जी भाई साहब वाला मामला है। तो ब्रॉडली त्यागी जी, गॉट माय पॉइंट? ऑल 3 पॉइंट्स यू वांट टू राइट डाउन? नो, ठीक है। हिंदुत्व मेरा पहली रिक्वायरमेंट। हाउ फार यू आर कंफर्टेबल?
Oh, that I will check with my editorial department. That's not an issue. ठीक है, लॉर्ड श्री कृष्णा को लेकर के तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, क्योंकि दर्द हो तो पहले बता लेनी चाहिए, नहीं। क्योंकि वी डोंट वांट टू पुट एक्स्ट्रा एनर्जी इन दैट एरिया वेयर पीपल आर स्लाइटली एप्रीहेंसिव, तो वो सब ना हो। सेकंड चीज़ है मेरी थ्रेशिंग टू पॉलिटिकल राइवल्स, वो कैसे होगा? That's in terms of creative, what you want to use. We are as a neutral. You will do not involve our political, एडिटोरियल टाइप ऑफ yeah, that can be done. Editorial type we can be done, and we can write the ADVT. तो डिफेंडिंग योरसेल्फ, हाँ। ठीक है, वो लास्ट में वो तो हो ही जाएगा, हाँ, ठीक है, और डिजिटल वाला भी हो जाएगा, हाँ। ठीक है। पुष्प की अगली मुलाकात हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित अमर उजाला के दफ्तर में नवजीत कुमार से हुई, जो यहाँ मार्केटिंग ऑफिसर है। पुष्प ने नवजीत से हिंदुत्व के एजेंडा, पोलराइजेशन, पॉलिटिकल सटायर, फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स के प्रमोशन की बात की, जिन पर नवजीत ने कोई आपत्ति नहीं जताई। एंटी बीजेपी की स्टोरी को ड्राई डाउन करने की बात पर नवजीत ने कहा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अपना बात ज्यादा उठा दी, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बहुत कमज़ोर हैं पंजाब के अंदर, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक माहौल को क्रिएट किया जाए ताकि 19 का जो मोदी जी वाला इलेक्शन है उसमें हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो आगे बढ़ सके। तो वो बेसिकली श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण और गीता में से श्लोक लेकर के उस माहौल के विज्ञापन रहेंगे। अच्छा, धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद हम धीरे धीरे उसको राजनीतिक रंग देना शुरू करेंगे। मैं समझा। हाँ, तो जनता को पहले तो श्रीमद् भागवत गीता और हम लोग कौन है, हमसे जुड़ाव हो जाए, बताएंगे आप। हाँ, तो श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति जो है वही विज्ञापन रिलीज कर रही है, और हमारा धार्मिक पॉलिटिकल सेमी पॉलिटिकल बाहर से कवर रहेगा श्रीमद् भागवत गीता का और भगवान श्री कृष्ण का, और धीरे धीरे जो उनके संदेश हैं समाज हित में खास तौर से उनको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। और फिर जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा 3 महीने तक पूरा धार्मिक रखा, फिर हिंदुत्व को धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ा करके पॉलिटिकल कवर कर देंगे। एक किसी को ये नहीं लगेगा कि ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये लगेगा कि हाँ राजनीतिक जन चेतना चला रहे हैं, है ना। तो आप मेरे जो एजेंडा है वो थोड़ा सा यही है, व्हाट्सएप नंबर यही है। वो तो मैं आपको सारे ये जिंगल भेज दूंगा। हाँ, मेरी आप पॉइंट लिख लीजिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है। एक तो हमारा जो रहेगा भाई साहब नवजीत जी, और एक तो हिंदुत्व का एजेंडा रहेगा, हाँ, so that when the right time comes we can at least polarize the entire issue and capitalize on the vote side। ठीक है जी। तो पहला है हिंदुत्व एजेंडा, दूसरा हो गया आपका ये भी डिजिटल भी शुरू हो गया, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। हाँ, फेसबुक पे भी हम लोग आ गए हैं, और इस पे भी अपना एक टीवी, अमर उजाला टीवी वो भी है शायद, तो लेकिन वो उतना महंगा नहीं होगा जितना प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट बहुत ज़्यादा है और इनका सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट ही प्रिंट है, तो अभी डिजिटल पे उतना महंगा नहीं होगा। ठीक है, तो फिर जो हमारी डिजिटल की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो हमारे सेकंड डिजिटल रिक्वायरमेंट, हाँ डिजिटल हो गई, मतलब यूट्यूब हो गया, आपका टीवी हो गया और फेसबुक हो गया। इस पे प्रमोशन ऑफ फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स, जो हमारे फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स हैं, जैसे श्री मोहन भागवत जी हो गए RSS वाले, या उमा दीदी हो गई, वीना कटियार जी हो गए, या कुछ और प्रचारक हो गए जिन्होंने आंदोलन के लिए बहुत कुछ किया है, तो ताकि उनकी रिकॉल वैल्यू बनी रहे, वो एक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है। और दूसरा हम लोग जैसे इसमें पप्पू वगैरह यूज़ कर रहे हैं। चौथा पॉइंट आप ले लेना मेरा, थ्रैशिंग टू माई पॉलिटिकल राइवल्स। पॉलिटिकल राइवल्स मतलब हम अपने जो पॉलिटिकल हमारी अगेंस्ट है, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, जनता दल हो गई, उनकी बजाना चाहते हैं। तो जैसे इसमें जिंगल में तो हमें ईजी होता है, हमने जिंगल बनाया, पप्पू लीडर को चुनाव किया, तो है ना, बहन जी पैटी मायावती समझ गए, तो कुछ उस तरह का हम प्रिंट में कुछ कर सकते हैं, प्रिंट में भी हो सकता है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन कमीशन का आदेश तो है नहीं, अभी नहीं, अब तो हो गया, खत्म हो गया। तो अब अगर हम 1-1.5 साल तक पप्पू वगैरह इनको बजाते रहेंगे तो एक माहौल बना रहेगा। इन शब्दों को किस तरह से प्रयोग होता है, क्या क्या करना चाहते हैं, पप्पू हो गया, हाँ बहन जी हो गया,
कर लेते हैं मतलब है ना। तो वो मेरा एजेंडा है कि हम लोग अपने पॉलिटिकल राइवल्स को थ्रैश करना चाहते हैं। और नवजीत जी, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट के साथ मैं एक बात लास्ट में बोलना चाहता हूँ। जो मेरी बड़ी रिक्वायरमेंट है, संगठन की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे 3 साल में आपने देख लिया हमारा मोदी जी का जो सरकार है उसमें ज़्यादा तो कमीनापन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत गरीबों की तो ये GST को लेकर प्रॉब्लम हुई, लेकिन स्कैम तो नहीं हुआ। तो जैसे मान लिया कभी कोई बहुत बड़ी मामला हो गया, जैसे अमित शाह के लड़के का मामला हुआ, ये जय शाह की स्टोरी अभी आई थी, तो कभी ऐसा कोई मामला हो तो उसको या तो डाइवर्ट करने के लिए या तो अंदर की तरफ चला जाए, ताकि या उस दिन हमारी जैकेट लग जाए। जैकेट लगा है ना, ताकि ये ज़्यादा अच्छा है ना, हम आगे आ गए। आप भी थोड़ा नजर रखें उस चीज़ पे। हाँ, हम भी थोड़ा नजर रखें। हाँ, आप ज़्यादा रख पाते हैं, हमारे से ज़्यादा आपको पता लगता हाँ, है। इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास पहले, हमारे पास आते आते टाइम लगा। 4 चीज़ें और हो जाती हैं उसमें। एक तो उसमें 4 चीज़ें जुड़ जाती हैं या 4 चीज़ें कम हो जाती हैं, लेकिन आपके पास ठीक होता है। तो क्योंकि मेरे पास ये सारे एजेंडा, यही सब हम केसरी के साथ बात की हमने। तो थ्रेशिंग टू माई पॉलिटिकल राइवल्स के अलावा जो लास्ट पॉइंट है, एंटी बीजेपी स्टोरी को थोड़ा सा ड्राई डाउन कर दें, ताकि वो हल्की कम प्ले हो, या थोड़ा सा हम जैकेट लगा दें ताकि हमने अपना बात ज़्यादा उठा दी। ये ज़्यादा अच्छा है। इस पूरी डील के लिए पेमेंट का आधा हिस्सा कैश में लेने के लिए भी अमर उजाला के नवजीत कुमार एकदम तैयार दिखे। बकौल नवजीत, पेमेंट कैश से भी ले लेंगे, हम कैश भी ले लेंगे, पहले डील तो करिए आप। तो नवजीत जी, भाई साहब, एक बात मेरी पर्सनल रहेगी थी कि हमारे पास जैसे ज़्यादातर डोनेशन का पैसा है, मतलब कैश डाइवर्जन में ना, जैसे 100 रुपये का आया तो दोनों ने तो 50-50 में मांगा कि 50 चेक से चला जाए RTGS से और बाकी कैश। पेमेंट कैसा भी रहेगा, कैश का ले लेंगे, कैश भी ले लेंगे, हमें रसीद देनी है। हाँ, जो चेक से जाएगा GST फिर उसी पे लगाना। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि बिल जो है वो GST जो चेक वाला जाए, कम करना नहीं बिल। हाँ, मतलब आपने 100 रुपये का 1 CR का बनाया तो 50 तो हमने चेक से कर दिया। काम हमारा 1 CR वाला ही होगा, लेकिन कंपनी को हमने थोड़ा चेक से कर दिया, आधा कैश से कर दिया। तो हम जब GST देंगे 5% ही, क्योंकि 5% ही है शायद एंड पे, तो हम 50 वाले पे 5 दे देंगे। हाँ। पत्रकार पुष्प शर्मा की अगली मुलाकात अमर उजाला के चंडीगढ़ ऑफिस में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मोहित शर्मा, GM मीडिया सॉल्यूशन भरपूर सिंह और सीनियर मैनेजर मार्केटिंग मीडिया सॉल्यूशन कमलजीत सिंह से भी हुई। हिंदुत्व के एजेंडे के जिक्र के बाद पोलराइजेशन की बात पर सीनियर मैनेजर कमलजीत सिंह ने कहा, ठीक है सर। कन्वर्टेड इनटू वोट्स। ठीक है सर। तो हम लोग चंडीगढ़ और ट्राई सिटी को स्टार्ट करते हैं एंड वी विल टेक इट इन अ फेज मैनर। फेज वाइज, फर्स्ट फेज व्हेन वी कॉल इट इज अ टेस्ट एंड ट्रायल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमें रिटर्न नॉट इन टर्म्स ऑफ द मनी बट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलैरिटी कितना आएगा कितना नहीं आएगा। बिल्कुल सर। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, जो हमारा ब्रॉड एजेंडा है वो ये है कि हम श्रीमद् भागवत गीता, लॉर्ड कृष्णा और श्लोक के साथ लोगों के साथ एक पवित्र रूप से एक रिश्ता कायम करें। और धीरे धीरे जो इवेंट्स हैं के साथ, हमारा इवेंट को लेके कुछ हुआ है तो हम कैंपस में भी जाएं। अगर उन्हें लगेगा कि हम सच बोल रहे हैं तो सच चाहे गुरबाणी से आए, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता से आए, वो आपको भी समझ में आता है, वो मुझे भी समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका किसी सबसे हमारे होली ग्रंथ है, स्क्रिप्चर्स है। तो हम आपका अगर इवेंट्स वगैरह होती है तो उसमें भी क्लब इन करना चाहेंगे, नंबर 1। और धीरे धीरे फिर 19 को टारगेट करते हुए फिर हम सेमी पॉलिटिकल होकर के थोड़ा सा बीजेपी फोर्स को प्रमोट करेंगे। और शायद लोकतंत्र के अंदर आप हिंदुत्व की बात करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अबाउट द हिंदुत्व एजेंडा, and slightly after 3 months of test and trial phase we would like to give it a semi political color so that our agenda of polarizing the entire issue gets converted into votes। ठीक सर, ठीक है, ताकि हमें वोट में उसका अल्टीमेटली रिजल्ट मिले। आप 2019 का वो टारगेट करके चल रहे हैं।
पेमेंट की बात पर जीएम मीडिया सॉल्यूशन भरपूर सिंह ने कहा, नहीं, हमारे को मैटर थर्ड आई से आएगा। पेमेंट हमारे पास 50% कैश और बाकी है जीएसटी। 50% कैश और बाकी RTGS। एंड डिजिटल प्रेजेंस Digital presence we have. digital presence We have a good digital presence. .com or you have some YouTube channel or something? No, we have our Facebook? own .com. That's amarujala.com. That's a number of जगह। लेकिन वो तो उस पे तो सभी चीजें ऑटोमेटिकली चली जाएंगी जो जा रही हैं। हाँ, ये है कि जो ई पेपर ही हो गया एक तरह का। e-paper, हाँ, that will go. But if you're looking for a separate platform, we can create that if you're looking for it. क्योंकि हमें आरजे मेंशंस करते हैं तो हमारे फेसबुक के ऊपर हमारे कुछ चीजें जाती हुई, हमारे ये पप्पू वाले आई वाज प्लेइंग सम जिंगल्स। सर का ये है कि जो मैसेज है वो मासिस तक देना है कि जो आज के देश में जो पॉलिटिकल, because ultimately end of the day we want to thrash our political rivals. There are certain nicknames like Pappu and Not directly, Benji. indirectly. So we want to capitalize on those, creating some satire kind of thing. Like there is on Aaj Tak, so sorry, animated कुछ आता है तो certainly media groups they have liberty to run some such kind of things, right? So we want to go for that kind So of. you want to go for that kind of. So apart from jacket, either we will bang on the head on from forefront, otherwise we are not interested in 9th page or 10th page or 3rd page. वो नहीं जाना है. Advertorially, if we want some help, if it is on paid basis, अगर हमारी कोई इवेंट हो रही है, संगठन के व्यक्ति, बड़े व्यक्ति आ रहे हैं, फायर ब्रांड तो coverage वगैरह भी- तो भी always- एडवर्टोरियली आपका एडिटोरियल सेटअप उसको थोड़ा सा अच्छा पैकेजिंग करके एक न्यूज सेटअप में चला जाए। हाँ, वो that is basically part and parcel when we will deal all the things. ओके ठीक है। When do you want the Sacharaji to happen? मैं तो आपको सीएस आपके साथ बैठा दूंगा वंस थिंग्स किसके साथ? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है लोकल। अच्छा, आपने कोई लोकल हायर करे हुए हैं? नहीं वो संगठन के ही व्यक्ति होते हैं। रिलीजिंग जो है सर वो नागपुर बेस्ड एजेंसी है, थर्ड आई क्रिएटिव्स जो होंगे वो तो क्रिएटिव रिस्पांस। और जो पेमेंट है वो तो लोकल है। नहीं, हमारे को मैटर थर्ड आई से आएगा। अच्छा। पेमेंट हमारे पास 50% कैश और बाकी RTGS। राइट लोकल भी Local से आएगा। भूषण हाँ मतलब एक Before I'll make publishing him the eat. What's his name? I'll make him eat. पुष्प शर्मा की अगली मुलाकात अमर उजाला के मेरठ ऑफिस में डिप्टी मैनेजर मीडिया सॉल्यूशन संजीव रस्तोगी से हुई। हिंदुत्व का एजेंडा चलाने और पॉलिटिकल राइवल्स को थ्रेश करने की बात पर संजीव रस्तोगी ने कहा, तापमान धीरे धीरे टेम्परेचर एड ऑन करेंगे। लेकिन हमारा जो एजेंडा रहेगा थ्रेशिंग टू आवर पॉलिटिकल राइवल्स वो सेकंड फेज में जाएगा गर्मियों के बाद, जैसे 19 पास आता जाएगा क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ बेसिकली हमारा जो फोकस है वो 2019 ही है। राइट और हम उसकी प्रिपरेशन 1.5 साल पहले कर रहे हैं। अभी सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चलेंगे। गर्मी जैसे जैसे हीट के पैदा होगी द सेंसेशन एंड तब बढ़ाएंगे तापमान धीरे धीरे टेम्परेचर को ऐड ऑन करेंगे और वो भी हम पे हिट करेंगे, हम भी करेंगे। वो उनकी भी लोकतंत्र राइट है हम पे हिट करना और हम भी करेंगे। वो भी अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे बारे में लिखेंगे, हम भी लिखेंगे। But we certainly want to capitalize on those issues and ultimately the Hindutva agenda should polarize the entire political scenario so that we can get political returns ultimately. 342 आए थे तो 40 ना जाए तो 40 ना जाए, ये प्रयास है। बाकी ईश्वर की अनुकंपा रहेगी जैसा हो जाए। हाँ। पुष्प शर्मा अमर उजाला के मुंबई ऑफिस भी गए और यहाँ इनकी मुलाकात मैनेजर सेल्स हरप्रीत कौर से हुई। पॉलिटिकल राइवल्स को थ्रेश करने, एग्रेसिव कैंपेन, खिलाफ स्टोरी को ड्राई डाउन प्ले करने और इलेक्शन के टाइम पर पोलराइजेशन जैसी हर बात सुनने के बाद अमर उजाला की मैनेजर सेल्स हरप्रीत कौर ने कहा, हम लोग वो कवर करेंगे, आपका सोशल साइटिंग भी करेंगे, हमारा आपका ट्विटर में भी करेंगे, बिकॉज ट्विटर में, फेसबुक में वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हम पप्पू जो कांग्रेस पे अटैक करेंगे और बुआ कह के मायावती पे और क्या नाम बबुआ बोलते हैं अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी। तो हम इस तरह के जिंगल्स हमारे रहेंगे जिससे हम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पे अटैक करते रहेंगे ताकि बहुत जो भाजपा का वोट है, हिंदुत्व वोट है, वो मजबूत हो जाए। दैट इज़ आवर पॉलिटिकल आर्म। वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन हम लोग तो संगठन है, हिंदुत्व का काम करते हैं। So I would say that competitors related, you want to run the jingle sort of like character sort of. Right.
इनके ऊपर कुछ अभी तो ऑडियो है, फिर इसमें आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो डिजिटल प्रमोशन इस तरह का रहेगा। तो ये 3 एजेंडा रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा 3 महीने तक का जो हमारा बजट आपके साथ रहेगा वो मेरे दिमाग में तो 1.5 CR का था, लेकिन प्रिंट तो अभी है ही नहीं यहाँ पर। तो मैं खाली आपके डिजिटल के लिए 50 लाख तक का कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। बाकी धीरे धीरे जब बढ़ेगा आपके वीडियोस ज़्यादा चलने लगेंगे, कुछ लोगों की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, फिर नेक्स्ट फेज़ में अगले 3 महीनों में जो पहले 3 महीने हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ा देंगे। इलेक्शन जब आएगा तो उस समय मतलब इलेक्शन आने से 2-3 महीने पहले ज़्यादा हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी विज्ञापनों में, और उस समय हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव कैंपेन करेंगे, तो ज़्यादा वीडियोस ज़्यादा ये सब चलेगा, ताकि हम लोग पूरे इलेक्शन को पोलराइज कर सकें। ठीक है, अपने फ़ायदे में माहौल बना सकें। इज़ इट क्लियर? एडिटोरियल सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये कैसे, लेकिन जिस तरह से कई बार हमारे नेगेटिव स्टोरीज जाती हैं, जैसे अमित शाह जी के बेटे की स्टोरी थी जय शाह वाली, जिसमें फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर कुछ लोगों ने वो बात की थी। वैसे तो कभी कभी होता है ऐसा, बीजेपी में ज़्यादा ये नहीं होता, पर कभी कभी ऐसी हमारे एंटी स्टोरी आती हैं, तो वो स्टोरी डिजिटल पे ज़्यादा रन ना करें। तो हमारा एक एजेंडा ये रहता है, भाई क्यों हमारी इमेज ख़राब की जाए। ठीक है, तो आप हमारी स्टोरीज़ में हमारे खिलाफ जो स्टोरीज हैं उनका थोड़ा डाउन प्ले करो, उनको वो, हाँ ठीक है। बिजनेस की तरफ से तो मैं आपको बहुत सपोर्ट करूँगा, ठीक है, लेकिन ये मेरी नेगेटिव स्टोरीज थोड़ा सा इनका एक सॉल्यूशन निकालो। और इलेक्शन के टाइम पे क्योंकि हमने पोलराइज करना है पूरा इलेक्शन, तो उस समय थोड़ा हिंदुत्व का माहौल और अच्छा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में कुछ प्लान्स बनाओ। तो पहले एक छोटी डील को आगे बढ़ाते हैं, तो एक रिलेशनशिप बन जाएगा, फिर आप मुझे कुछ आइडियाज़ बताओगे, फिर एक बजट बताओगे, तो फिर वो बड़ा भी होगा तो उसको हम सॉल्व करते रहेंगे। तो आपका क्योंकि हिंदी बेल्ट में है, और यूपी में काफी स्ट्रॉन्ग, और यूपी और बिहार से, उत्तराखंड वगैरह से, यूपी बिहार से ही असली पावर बनती है। यूपी इज अ बिग मार्केट, राइट, पॉलिटिकल मार्केट। तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, तो उसको आपने मेरे फेवर में माहौल बनाना है। लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की इनके खिलाफ लगातार स्टोरीज चला रही है, ठीक है, और हमारे खिलाफ जो हो बीजेपी के खिलाफ उसको हटाना है, उस पर नहीं काम करना है। आप लोग फेसबुक पे भी हैं? हाँ, we have a Facebook also. And YouTube? हम लोग फेसबुक में भी है, हमारा ट्विटर में भी है, हमारा इंस्टाग्राम में भी है। तो फेसबुक में मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे 72 लाख फॉलोअर्स है फेसबुक में, एंड मेरा ट्विटर में जो है वो मेरा 7 लाख है, और मेरा इंस्टाग्राम में 2 लाख। तो हमारी जो डिजिटल डील होगी उसमें वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, सब आपका चीज़ें सोशल सीटिंग भी करेंगे, हमारा आपका ट्विटर में भी करेंगे हम लोग, बिकॉज ट्विटर में और फेसबुक में वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो उस पे हम लोग आपका सोशल सीटिंग करेंगे, उस पे आपका लाइक कंटेंट भी हम कर सकते हैं, वीडियो रनिंग। तो उसके लिए क्या एडिशनल पेमेंट है? नहीं, दैट आपको पूरा एक पैकेज सॉर्ट ऑफ में बना के दे सकती ठीक है। तो वो मुझे मेरे लाइक सीनियर है हिमांशु गौतम करके है, नहीं ही डोंट सिट से, ही सिट्स इन दिल्ली ओनली, तो मैं डिस्कस करूंगी उनके साथ, इवन गगन इज है, तो पहले मैं आपका पूरा ब्रीफिंग उनके साथ डिस्कस करूंगी कि दिस सो एंड सो आप देख रहे हो हमारे साथ से, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं। पत्रकार पुष्प शर्मा की अगली मुलाकात दिल्ली में अमरउजाला.com के बिजनेस हेड हिमांशु गौतम और सीनियर मैनेजर आशीष विमल गर्ग से भी हुई। हिंदुत्व का एजेंडा, थ्रेशिंग टू माय पॉलिटिकल राइवल्स और कैरेक्टर असैसिनेशन जैसे मुद्दों पर हिमांशु गौतम ने अपनी सहमति दी और बातचीत के दौरान ये भी कहा, ये हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे आपके लिए। कोई परेशानी की बात नहीं, राइट, मेंटली से लड़के होते हैं। Once we cross our 3 months duration of test and trial phase, which we are calling test and trial because few companies might not deliver the kind of things we are expecting. So then at that point of time we will simply put restraint and we will not put forward the kind of things. But once in 3 months deliverables are fine from any company, then we'll enter in a second phase. Second phase we are calling targeting thrashing to my political rivals like Pappu, Bua and Babua. So we want to create, we don't want to insult them because insulting is a bad norm, but we want to create satire so that it's making fun, and in a funny way we are
putting our agenda of character assassination forward. So that's how. ये तो श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति will put it forward, and Samiti will be the only authority to release the orders. So that's how things are. We are planning. Total 30 I am carrying right away. But ये सारे के सारे कर्नाटका इलेक्शंस को लेके हैं, because we were running few jingles there in FMs. तो अब यूपी को लेकर के फिर हमें we need to change something, क्योंकि वो कर्नाटका को लेकर है. So you do you have any in-house वॉइस ओवर वगैरह? हाँ वो करा. ओके. इज इट ओके? इस तरह के रहेंगे वो सब चीज़ें? हाँ करा देंगे. ये तो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट की तरह जाएगा ना हमारे लिए. नॉर्मल मतलब इसमें ऐसे जाएगा कि जो जिंगल रहेगा आपका ऐप भी है? हमारा ऐप भी है. उस ऐप को जैसे खोला तो उसके ऊपर पुश बटन और ये सब चीज़ें उसमें आ सकता है? हम इसको वीडियो में एम्बेड कर देंगे. दिस वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम. तो ये हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे आपके लिए. ठीक है. आपका जो है ना हाँ इसको फुल फ्लो कर देंगे. खाली डिजिटल तो जाएगा लेकिन मुझे ऐप पे भी चाहिए भाई साहब. आप हैं? सब जगह है. तो ऐप में मुझे कहाँ पोजीशन मिलेगी? आपको जैसे जब ऑन होगा ना, जैसे हाँ ये जैसे कोई साइट खोलेगा तो सबसे पहले ये आ जाएगा. साइड में आ जाएगा. साइट पे नहीं, वो पेज पे सर वो ऐप आ जाएगा. ठीक है. जैसे इस तरह का होता है यहाँ पे, ये जो बैनर आप देख रहे हैं, इस तरह के जो बैनर्स हैं ये रहते हैं. ठीक है, डन. तो ये सब बैनर जो है चलते रहेंगे, इस पर बढ़िया बैनर बन जाएंगे. नीचे आपके भागवत जो भी समिति श्रीमद् भगवत गीता प्रचार समिति का आ जाएगा और ऊपर वो पूरी मैसेजिंग आ जाएगी. लेकिन भाई साहब कल को एक थोड़ी सी, कि आप संगठन के व्यक्ति हैं, सब कुछ जानते हैं, तो इसको थोड़ा सा ना सरोगेट वे में रखेंगे. आपका GST कितना है? 18%. भाई साहब वो प्रिंट पे है. प्रिंट पे 5%. आपके यहाँ 18 है. डिजिटल में 18 होता है, प्रिंट में 5%. वो आप चिंता ना करें, देख लेंगे लोग. प्रिंट में 5 होता है, इसका 18 होता है. तो उसके साथ में सोशल मीडिया भी कनेक्ट कर रखा है आपने? सोशल मीडिया में भी कर देंगे, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वहाँ भी कर देंगे. ठीक है. हमारे यहाँ जिन लोगों से भी आप मिले उनसे आप गीता की प्रोग्राम की बात करें. आपने हिंदुत्व वर्ड को कम यूज़ करें, ना ही उसका वर्ड करें. उनसे मतलब आप अनबायस्ड बात करें उन सब लोगों से. देखिए मेरा तो बैकग्राउंड है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने आपको क्या बोला कि मैं अपनी ये चीज़ें रन कर सकता हूँ, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है. बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है. राइट. मैं इंटरनली इसके लिए लड़ भी सकता हूँ. होता है एडवर्टाइजमेंट है, मैं किसी दूसरे को मना नहीं कर रहा था. मैंने भी आपको बोला ना कि वो भी आ जाएँ, उनका भी स्वागत है. राइट. ठीक है. समाजवादी का दिखाना मतलब किसी में वक्फा है. तो हम ना मतलब किसी के साथ में ना किसी के खिलाफ हैं. आप समझिए मेरी बात. हम निष्पक्ष हैं, हम बिल्कुल जनता के साथ हैं, अपने पार्टी के साथ हैं. बट क्योंकि मैं ऑनलाइन रन करता हूँ तो डेफिनेटली मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हर कंपनी में कि जो इंटरनली मेरे को पता है क्या चीज़ें काम करेंगी. तो आप मान के चलिए कि वो चीज़ हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ करने की. और मेरा पप्पू वाला एजेंडा कहीं ऐसा ना हो फिर उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्शन कल को हो जाए. देयर शुड नॉट बी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. देखिए जो अभी मेरे पास पप्पू वर्ड में तो सुप्रीम कोर्ट का कुछ वर्ड नहीं था, वो इलेक्शन कमीशन का था, वो भी गुजरात में था. अच्छा. अगर कोई आदेश आएगा किसी थाने का भी आ जाएगा ना तो मैं विड्रॉ कर लूँगा. मेरे को कोई आप मुझे. अमर उजाला के मुंबई ऑफिस में मैनेजर सेल्स हरप्रीत कौर के मुताबिक अमर उजाला के फेसबुक पर 72 लाख, ट्विटर पर 7 लाख और इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोअर्स हैं. ऐसे में मोटी रकम लेकर किसी का खास एजेंडा या प्रोपेगेंडा चलाकर ये कितनी बड़ी तादाद में लोगों को गुमराह कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है.